Good morning, students. Let's start our chapter number 3, Interior of the Earth. Today we will discuss our fourth source of indirect source of information about the Earth surface or inside the Earth. That is earthquake waves. Earthquake waves was firstly used by the Mohorovices in 1909. Before we proceed to the earthquake waves, how it works and all that, and how we come to know about the interior of the earth through the earthquake waves, you have to know some terminology related to the earthquake waves. First of all, what is earthquake? Earthquakes are tremors which are produced by the passage of vibratory waves through the rocks of the earth. अर्थक्वेक्स क्या हैं? कोई भी कंपन, ट्रेमर जो है किसी भी अर्थ के किसी भी पार्ट में, किसी भी रॉकिंग पार्ट पे जब कोई ट्रेमर होता है, वाइब्रेटरी वेव्स वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सपोज आप बैठे हो और आप एक बेंच पे बहुत जोर से पंच करते हो, तो वो बेंच अगर फ्लेक्सिबल है हल्का सा भी, तो उसमें क्या होगा, ट्रेमर आ जाएगा। तो वो भी एक तरीके का माइनर सा अर्थक्वेक ही है। एनी ट्रेमर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वेव्स क्या है? द वेव्स विच प्रोड्यूस वाइब्रेशन थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ। द वेव्स विच प्रोड्यूस, जिनके कारण रॉक्स में वाइब्रेशन होता है, उन वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, P waves, S waves and L waves, which we will discuss after this in detail. Third is seismology, the science in which we study about the earthquake. वो विज्ञान जिसके बारे में हम अर्थक्वेक से रिलेटेड सभी कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, seismology. And seismological evidence, the evidence which are based on the earthquake waves, that are called seismological evidence. Seismologist, the person who studies about the earthquake, and he is known as a seismologist, like Mohorovices. He is also a seismologist. Seismograph is an instrument which measures the intensity of the earthquake waves, means the instrument which records the earthquake waves. जब कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, आप नॉर्मली आप सुन लेते हो कि अर्थक्वेक्स आया, भी रिसेंटली भी आया, तो उसका आपको बताया जाता है कि कितना इंटेंसिटी था, ये 4 रिक्टर स्केल पर था, ये 5 पर था। तो ये चीज़ जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। हमें उससे पता लगता है कि कितना जो है वाइब्रेटिंग, कितना डिस्ट्रक्टिव जो है अर्थक्वेक था या नहीं। इसको हम लेटर ऑन पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फोकस, द ओरिजिन प्लेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थ के इंटीरियर में, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के किसी भी एक इंटीरियर पॉइंट से जहां से ये वेव्स शुरू होती हैं, ये वेव्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर में चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ जो है वो फैलती हैं। तो इस पॉइंट से जहां से ये वेव्स उठना शुरू करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। नेक्स्ट एपिसेंटर, इस फोकस पॉइंट से जो वेव्स निकलेगी उसके जस्ट वर्टिकल अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट है, जैसे ये फोकस पॉइंट है, इसके वर्टिकल अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर पर अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द अर्थक्वेक वेव्स हेल्प अस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। First of all, as I discussed with you, that earthquake waves are of 3 types. Very important question. Earthquake waves are of 3 types. First is P waves. Second is S waves.
these two waves and L waves. So let's start. We will discuss the three together: P waves, S waves and L waves. Firstly, P waves. It is also known as primary waves. Primary waves, longitudinal waves, surface waves are also known as secondary waves, or transverse waves. L waves are known as surface waves. This is the first point about the three. It is also known as primary waves and longitudinal waves. Secondary waves, S waves are also known as secondary and transverse waves. L waves are also known as surface waves. And how they move? Firstly, primary waves. It moves inside the earth. कहाँ मूव करती है ये? अर्थ के अंदर. Similarly, S waves also move inside the earth. ये भी अर्थ के अंदर मूव करती हैं. But surface moves at the surface of the earth. They do not move inside the earth. अर्थ के अंदर मूव नहीं करती. Third, it can pass through all the three mediums. Pass through all the three mediums, that is solid, liquid and gas. Okay, and S waves, they can only pass through the solid. S waves जो है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल को पास कर सकती हैं. जैसे ही ये लिक्विड मटेरियल आएगा, दे विल बी ट्रांसफर्स. ठीक है, सो दे disappear in liquid. कोई भी लिक्विड मटेरियल आता है, they will disappear. L waves, they again can pass through all the three mediums: solid, liquid and gas. Now next is the speed. All the three have different speeds of motion. The speed of the P waves are 8 km/s. They move at the speed of 8 km/s, while the S wave moves 4 km/s, and L waves, they move 3 km at the speed of 3 km/s. So the speed is also different in all the three waves. Now the motion of the particles. Particles जो है इन waves के चलने पर कैसे जो है मूव करते हैं. सबसे पहले P waves. P waves में सपोज ये हमारे waves आ रही हैं. ये waves हैं. waves जो है इसमें जो particles मूव करते हैं, they move along the propagation of the waves. जो waves हैं उसी के propagation में इसमें particles जो हैं मूव करते हैं. So the movement of the particles in the direction of the propagation of waves. So but now what we understand, यहाँ पर जो है particles इसमें मूव कर रहे हैं, horizontally मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें longitudinal waves भी कहते हैं. अब इनकी स्पीड जो है वो 8 km/s है. अर्थ के इनसाइड में ये मूव करती हैं तो बहुत ही स्पीडली ये पास थ्रू हो जाती हैं.
so they are not so much destructive. So यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिखेंगे, propagation of particles move in the direction of the wave. And next is it is not so much destructive. बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं होती है, करेक्ट। आपको ये डायग्राम्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एस वेव्स। एस वेव्स में जो वेव्स हैं, वेव्स ऐसे ही है, बट इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे वेव्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऊपर नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स मूव vertically or perpendicularly. They are also not so much destructive. Also not so much destructive. Now the L waves. L waves are also of two types, so we will discuss it differently now. But before it, you have to understand these two waves, P and S waves, they are combinedly called body waves. इन दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर P waves और S waves, इनको हम body waves कहते हैं, because they moves inside the solid part of the earth. कि जो अर्थ का अंदर का पार्ट है उसमें अर्थ की बॉडी के अंदर मूव करती है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स। और एल वेव्स जो है वो अलोंग द सरफेस मूव करती हैं, so इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में भी आपको जो है डिफरेंस करना आ सकता है। नाउ एल वेव्स का जो है उसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। एल वेव्स इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। of the particles in the L waves is different in the two subtypes of L waves. L waves, it is divided into two subtypes, Rayleigh waves and Love waves. These are the two subtypes of the L waves. Rayleigh waves, it is named after the English physicist Lord Rayleigh. लॉर्ड रेले के नेम पर इसका नेम जो है रखा गया। और ऐसे ही लव वेव्स का नेम जो है AEH, जो सिस्मोलॉजिस्ट थे उनके नाम पर इसका नेम रखा गया है, because they introduced these two waves, so they are named after them. So now how the particles move in Rayleigh waves. Rayleigh waves, suppose these are our waves. The particles move in the Rayleigh waves like in circular motion. In this form they move. We can understand it by an example. अगर आपके कोई pond है, in the pond there is a still water, suddenly you throw a pebble in that, then there will be some waves in the water. तो वेव्स जो हैं वो चारों तरफ पेबल्स के डालने से चारों ओर जो हैं वो जाएंगी, सर्कुलर मोशन में निकलती हैं। ये हमने छोटे होते सबने किया। तो सिमिलरली इसमें रेले वेव्स में जो पार्टिकल्स की मोशंस हैं वो कैसे होती है, उसकी मूवमेंट सर्कुलर मोशन में, लाइक अ पेबल इन द पोंड। नाउ लव वेव्स, in the love waves particles moves horizontally. पार्टिकल्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं लव वेव्स में।
तो ये दोनों ही जो वेव्स हैं इनमें डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब दीज वेव्स आर मोस्ट, आप लिख सकते हो पार्टिकल्स मूव इन सर्कुलर मोशन and in this particles move in horizontal direction। अब इस वेव की जो है स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कहाँ मूव करती है along the surface of the earth। So due to these two reasons these waves are more destructive। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वेव्स वो किसके कारण होता है, एल वेव्स के कारण, सरफेस वेव्स के कारण, क्योंकि इनकी स्पीड कम होने के कारण ये अर्थ सरफेस पर ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं और ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। सो दीज आर द 3 वेव्स एंड वी लर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ दीज 3 वेव्स, कैसे बिहेव करती हैं, कैसे ये स्पीड, इनकी क्या स्पीड है, कैसे मूव करते हैं पार्टिकल्स इसमें, इनके थ्रू जो है वो हम देखेंगे कि इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ के अंदर की जानकारी हमें कैसे मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से ये वेव्स बिहेव करेंगी, हमने देखा कि ये जो वेव्स हैं जिनमें से पी और एल वेव्स तीनों मीडियम में से पास थ्रू हो जाती है, बट एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में से पास थ्रू होती हैं और लिक्विड में वो डिसअपियर हो जाती हैं। इन तीनों वेव्स का क्या बिहेवियर होता है उससे हम जो है एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा जो अंदर का अर्थ का सरफेस है, इनसाइड द अर्थ जो मटेरियल है वो किस टाइप का होगा, और इनके आने का टाइम भी जो है वो सबसे अलग अलग होता है। जब हम सिस्मोग्राफ पर इनको रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड होती है वो होती है पी वेव्स। पी वेव्स जैसे ही आती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और निकल जाती है, उसके बाद जो है उस पर आती है एस वेव्स। एस वेव्स जो है वो थोड़ा टाइम तक बनी रहती है और कुछ लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू पी वेव्स, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एस वेव्स के पास आउट होते ही कौन सी वेव्स आती हैं, एल वेव्स, और एल वेव्स जो है वो सरफेस पर बनी रहती हैं और ये अर्थक्वेक जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये कैसे बिहेव करती हैं इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So prepare the notes. Thank you and have a nice day.